Good morning, everyone, and let's continue with the tree data structure. We started with basics of trees. We have seen traversal techniques, binary trees, types of binary trees, binary search tree, and then at the last few lectures, we were discussing AVL tree. What is AVL tree? AVL tree is nothing but self-balancing binary search tree. So it is BST, but we balance it based on a height. So we actually find out the difference of left subtree height and right subtree height. So we were balancing height there. Now what if you have a large data? What if you have a large data? You balance that tree, but still total number of nodes are going to be increased. So anyway, height is going to be increased. When you have a large amount of data, your final tree will be very much bigger one. So if your entire tree is a bigger one, then definitely the height of your final tree will be larger one. And searching operation always depends on height. Correct? So अगर ट्री बड़ा हो गया तो सर्च ऑपरेशन भी लंबा चलेगा. Now there we have a problem. Is there anything by which I can compress that height, overall height? And there comes M-way search tree. Because binary search tree has only two ways, left and right, and it contains a single value in every node. A single value and two paths. That's the limitation of binary tree. So if we want to compress the overall height, we can never delete our data. We need to maintain our data. So if you want to decrease the overall height, then somewhere you are going to merge your data. एक नोड में एक डेटा रखने के बजाय अब एक नोड के अंदर एक से ज्यादा डेटा आप रखने की ट्राई करोगे, तभी आप ओवरऑल हाइट को कम कर सकते हो. So now we are thinking on if we can store multiple data in a single node. एक ही नोड के अंदर एक से ज्यादा डेटा अगर आप रख पाते हो तो ओवरऑल हाइट कम हो जाएगी. But in that case your tree will not be binary then. एक डेटा है तो लेफ्ट राइट बाइनरी हो गया, लेकिन अगर दो डेटा है आपके पास, देन अगर दो डेटा है तो आपके पास तीन पाथ होंगे, राइट? लेफ्ट D1 का लेफ्ट राइट, लेकिन D1 का जो राइट है दैट द सेम थिंग बिकम्स लेफ्ट ऑफ D2. So D2 का लेफ्ट राइट. Well, similarly, if you say you have three data, तो चार पॉइंटर्स बन जाएंगे. So we can say something like P0, D0, P1, D1, P2, D2, and P3. So something like that. If I go for Pm minus 1, Dm minus 1, and finally the last pointer Pm. A generalization form, right? अगर एक वैल्यू है तो दो पॉइंटर, मतलब चार वैल्यू है तो पांच पॉइंटर. उससे उल्टा सोचो, पांच पॉइंटर है तो चार वैल्यू, m पॉइंटर है तो m minus 1 values. Now we are focusing on m pointers because those are the number of ways, path, and that's why we say m way search tree. आपके पास कितने पाथ हैं? If you go for generalization form, you say m path, m ways. तो वैल्यू कितनी हो सकती है?
If you have m path, m minus 1, correct. So that node will have m minus 1 values. Now keeping that thing in mind, what we say, a binary tree has only one value and two subtrees. Now that increases the overall tree size. So if we want to decrease it, we need to come up with something where a single node has multiple data. So in that notion, we say generalization form is m-way search tree, where it has m minus 1 values and m pointers, right? So in that case, what is the degree of a node in tree? Tree के अंदर degree क्या होता है? A number of children is the degree. So m is also called the degree of tree, because m way अगर बोलते हो तो maximum m children है, तो m डिग्री हो जाएगा. एंड इन दैट केस अगर आप बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हो तो कितने पाथ हैं आपके पास? बाइनरी मतलब लेफ्ट राइट, टू वेज. सो डिग्री इज 2. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टू वे सर्च ट्री. उसको आप टू वे सर्च ट्री भी बोल सकते हो, बट उसके लिए स्पेशल नाम है बाइनरी. So this is what the m-way search tree is. At the end it is search tree, remember. So you need to maintain lesser on the left, greater on the right. Okay? So you have to maintain that relation. मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो d0 से बड़ी होगी एंड d1 से छोटी होनी चाहिए, because that is the pointer between d0 and d1. d0 के राइट में है तो बड़ी है, d1 के लेफ्ट में है तो छोटी है. So all the values here must be greater than d0 as well as less than d1. Only then you can say it is a search tree. So now we understand what is m-way search tree. A tree where a single node can have multiple values and so multiple pointers. So this is one example of m-way search tree. How it looks, this is the example. So we say this is our root node, which contains 2 values and it has 3 pointers. अगर 2 वैल्यू है तो 3 पॉइंटर रहेंगे वहां पे. एंड मेंटेन द रिलेशन ऑन ऑफ लेसर ऑन द लेफ्ट, ग्रेटर ऑन द राइट. सो 18 के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी वैल्यू 18 से छोटी होनी चाहिए. सो ओके, 9 और 11 लेस देन 18. देन 18 के राइट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो 18 से बड़ी होनी चाहिए. बट अलॉन्ग विद दैट all those values are on the left of 45. Correct? So here we say all the values will be greater than 18, but at the same time lesser than 45. So all the values here in this subtree, remember, entire subtree must be in between 18 to 45. And all subtrees are following the same कंस्ट्रेंट. सो अगर 27 और 36 के बीच में है तो वो बीच में रहनी चाहिए. एंड लाइकवाइज 45 के राइट में जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी 45 से बड़ी होगी. सो ऑल द वैल्यूज हियर 54, 63, एवरीथिंग आर ग्रेटर देन 45. सो इफ दैट रिलेशन इज बीइंग मेंटेन्ड एंड योर नोड हैज मल्टीपल वैल्यूज, then we can say this is m-way search tree, where value of m is what? Number of pointers. कितने दिख रहे हैं इस ट्री में आपको? 3. So maximum number of pointers are 3. We say this is 3-way search tree. This is 3-way search tree. So m may vary. अगर m की वैल्यू 2 है तो वो बाइनरी ट्री है.
But if m is having 3, then it is 3-way search tree. You can also have 4-way search tree, 5-way search tree, 10-way search tree, 15-way search tree. You can have it depending on your need and the size of data. Size of your data and your need, you can decide value of m. Developer can decide value of m. So is this example clear in your mind? What is m-way search tree and value of m can be anything? Well, if this is m-way search tree, then let us discuss few more things on m-way. In fact, it is not necessary that always your node will have exactly m pointers. जरूरी नहीं है अगर आप 3-वे बी ट्री बोलते हो तो ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक नोड में 3 पॉइंटर हो, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रेंट आप डाल नहीं पाओगे ना. ऐसा थोड़ी बोलोगे कि हर एक के पास 5 पॉइंटर होने ही चाहिए. अगर 5 पॉइंटर की बात करते हो तो उसको 4 वैल्यू चाहिए. आपने दी? नहीं दी. अगर आपके पास इनफ वैल्यू ही नहीं है तो 4 वैल्यू नहीं निकालोगे तो 5 पॉइंटर नहीं होंगे. दैट्स व्हाई it is not necessary for every node to contain exactly m-1 values. हर एक नोड के पास exactly m-1 वैल्यू हो जरूरी नहीं है. एंड दैट्स व्हाई m सब ट्री हो ये भी जरूरी नहीं है. दैट इज द अपर लिमिट. मैक्सिमम यू कैन हैव m pointers and m-1 values. मिनिमम एक. मिनिमम एक. अगर 0 है तो नोड ही नहीं है. सो वी कैन से मिनिमम एक वैल्यू, मैक्सिमम m-1 वैल्यू. सो हियर इन m-way search tree, look, you have pointers and you have values. You can go for minimum and maximum constraints, right? So if there are maximum m pointers, then we say there may be m-1 values. And for the minimum, you say minimum एक वैल्यू आप रख सकते हो नोड के अंदर. तो पॉइंटर कितने हो जाएंगे? 2. अगर एक वैल्यू है तो लेफ्ट राइट मतलब पॉइंटर 2 हो जाएंगे. सो योर सर्च ट्री, m-way search tree can have anything in between this range. So you say a sub trees and values maybe this one, 1 to m-1 values, and anywhere in between 2 to m pointers. नॉन एम्प्टी होना चाहिए कंपलसरी. अगर एम्प्टी हो गया तो नोड की ही जरूरत नहीं है आपको. सो वो आप कंसिडर नहीं करोगे. सो thus we say m is just the upper limit. m is just the upper limit when we talk about m-way search tree. So this is a basic for B and B plus tree. The actual thing that we want to have a look at now is B tree. B tree हमें समझना है. लेकिन अगर B tree समझना है तो आपको m-way search tree समझना पड़ेगा. Now as you can see in this example, the previous example, we are not maintaining or we are not balancing the height. ये m-way search tree तो है लेकिन इसकी हाइट हमने बैलेंस नहीं की. When we go and balance the height of m-way search tree, we'll get B tree. हमें B tree मिलेगा. जब इसकी हाइट बैलेंस करेंगे तो हमें B tree मिलेगा. So now let us focus on B tree. जैसे बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करने से AVL मिला, सिमिलरली
एम वे सर्च ट्री को बैलेंस करने से आपको बी ट्री मिलेगा। लेकिन यहां पे हम रोटेशन नहीं करने वाले हैं। दिस इज गोना बी सिंपल, इवन easier compared to AVL. Let us see. पहला प्रॉब्लम तो ये था कि अगर एक ही वैल्यू रखता हूं तो ओवरऑल हाइट बढ़ती है। वो ओवरऑल हाइट को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक नोड के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू डाल दी। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू रह सकती है एक नोड के अंदर? डिपेंड्स ऑन m. When I say 5-way B tree, 6-way B tree, I am saying B tree now. You have value of m, तो आप मैक्सिमम डिसाइड कर सकते हो भाई मैक्सिमम इतना चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। अब मिनिमम में कोई कंस्ट्रेंट नहीं था एम वे के अंदर। अगर मिनिमम में कोई कंस्ट्रेंट नहीं था तो अगर मिनिमम एक ही वैल्यू रखता हूं तो वो बाइनरी ट्री जैसा ही बन गया। तो फिर हाइट तो अगेन बाइनरी सर्च ट्री इतना हो जाएगा। तो एक पहला कंस्ट्रेंट मुझे ओवरऑल हाइट कम करना है, तो मैं मिनिमम में भी कुछ कंस्ट्रेंट लगाऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम तो इतना हो सकता है, लेकिन मिनिमम भी कुछ डिसाइड कर लो भाई, एक नहीं, मिनिमम भी कुछ ना कुछ वैल्यूज फिक्स होनी चाहिए कि भाई इतना तो रखना ही पड़ेगा तेरे को। सो दैट इज वन पॉइंट। एंड देन वी बैलेंस द ट्री ऑन हाइट। पहले हाइट कम की और अब बैलेंस करेंगे, भाई लेफ्ट राइट देखेंगे। अब लेफ्ट राइट देखने के लिए एवीएल में हमें हर बार बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना, और अगर बैलेंस नहीं है तो रोटेट करना, ये प्रॉब्लम था। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। बी ट्री सेज यू ऑलवेज इंसर्ट योर वैल्यू इन अ लीफ नोड। जो भी एग्जिस्टिंग लीफ नोड है वहीं पे आप वैल्यू इंसर्ट करोगे, कोई नया नोड क्रिएट नहीं करना है। बिकॉज अ नोड कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, एक नोड के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, तो नई वैल्यू जो है वो एग्जिस्टिंग नोड में ही डालूंगा मैं, और उसके बाद चेक करूंगा भाई मैक्सिमम कंस्ट्रेंट अभी भी ओके है या नहीं। ओके है तो कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ भाई मैक्सिमम 4 वैल्यू रह सकती है और मैंने 5वीं वैल्यू डाल दी उसके अंदर, 5वीं वैल्यू अगर मैं डालता हूं तो प्रॉब्लम है। वेल इन दैट केस हम ट्री को ऊपर की साइड बढ़ाएंगे, ना कि नीचे की साइड। हाउ, लेट अस सी नाउ। तो जैसे आप ट्री ऊपर की साइड ग्रो करते हो, रूट नया बनता है, हाइट तो फिक्स रहेगी। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। सो what is B tree? A specialized M-way search tree. This is why we need to learn M-way first. So what is B tree? It's a M-way search tree. Specialized क्यों बोला? क्योंकि उसमें और कुछ constraint हमने add किए। What are those constraints? So B tree is optimized. How? So we are going to have maximum, ये तो था ही, additionally we are going to have minimum constraint here। वन नहीं, हाफ। सो अगर आप सिंपल एम वे सर्च ट्री की बात करते हो तो आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम m पॉइंटर्स और m-1 वैल्यूज, मिनिमम एक वैल्यू और 2 पॉइंटर। दिस वाज योर एम वे सर्च ट्री। अब यहां पे हम ये बोलते हैं कि अगर सर्च ट्री की बजाय मैं इसको बी ट्री बोल दूं तो मैं मिनिमम अपडेट करूंगा। मैक्सिमम तो जो है वही रहने वाला है, लेकिन मैं मिनिमम में कंस्ट्रेंट डाल दूंगा, भाई एटलीस्ट हाफ पॉइंटर इज कंपल्सरी। आधा नोड तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। एंड इन दैट केस -1 वैल्यूज, जितने पॉइंटर है उससे एक कम वैल्यू रहेगी। नाउ m/2 -1, या तो फिर कुछ बुक्स आप देखोगे तो m-1/2,
वेल दोनों चलेंगे, कभी कभी वैल्यू में एक का डिफरेंस दिखेगा आपको, बट इट्स ओके, राइट. व्हाट सिंपली इट सेज, मिनिमम हाफ साइज मस्ट बी देयर. आपके ट्री के अंदर जितने भी नोड हैं वो नोड हाफ से लेके फुल इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं. सो बाय हैविंग दिस कंस्ट्रेंट आप ओवरऑल हाइट कम कर रहे हो. बाय हैविंग दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स you are decreasing the overall height of entire tree. Now this is widely used in your disks. Hard disk जहां पे आपको large amount of data maintain करना है, maybe you go for database also which makes use of file system. Because you have 1 TB, 2 TB or 512 GB hard disk, HDD or SSD, whatever you say, that total amount of data is very bigger one. जब आप हार्ड डिस्क में कुछ सर्च करते हो तो क्या होता है, 1 TB का हार्ड डिस्क या SSD है, आपने काफ़ी सारा डेटा अंदर रखा है, मूवी है, सॉन्ग्स है, कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी फाइल्स उसके अंदर पड़ी है. व्हेन यू सर्च समथिंग ऑन योर कंप्यूटर, व्हाट हैपेंस देयर? क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लीनियर सर्च में जाएगा? लीनियर सर्च मतलब पहले ब्लॉक से लेके लास्ट ब्लॉक तक एक एक करके सर्च करो. वेल यू कैन नॉट गो फॉर बाइनरी सर्च क्योंकि आपका डेटा सॉर्टेड तो है ही नहीं. सो देयर इज नो ऑप्शन यू कैन गो फॉर बाइनरी सर्च. Linear search will take time, and you might have seen few warning messages in Windows. कभी कभी आप सर्च करते हो तो लाइट येलो स्ट्रिप में एक मैसेज आता है कि भाई अगर इंडेक्सिंग एनेबल करते हो तो सर्च स्पीड में वर्क करेगा. यू माइट हैव सीन दिस. अगर इंडेक्सिंग आपने डिसेबल करके रखा है तभी आपको ये मैसेज मिलेगा, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग नहीं है तो कंपलसरी ऑपरेटिंग सिस्टम को लीनियर सर्च करना पड़ता है एंड इट विल टेक टाइम. वेल अगर आप इंडेक्सिंग अलाउ करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंडेक्स बनाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्रिएट इंडेक्स ऑफ योर हार्ड डिस्क. एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स. बुक में भी इंडेक्स क्यों होती है? टू क्विकली सर्च सम डेटा. भाई डेटा कहाँ पे पड़ा है उसका एड्रेस मेरे इंडेक्स में रहेगा. सो आई जस्ट नीड टू सर्च द इंडेक्स पार्ट. B and B plus trees are used to create those indexes for your hard disk. आपका डेटा जहां पे है वो डेटा तक पहुंचने के लिए जो इंडेक्स, जो पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे वो B और B plus ट्री के हिसाब से बनेंगे. सो इट इज अ सर्च ट्री, लेसर ऑन द लेफ्ट ग्रेटर ऑन द राइट करके कुछ आप डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हो. अब डेटा कहीं पे भी पड़ा हो, दोज आर एट द एंड पॉइंटर्स. डेटा सॉर्टेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी इंडेक्स जो है वो सर्च के हिसाब से रहेगी, लेसर ऑन द लेफ्ट ग्रेटर ऑन द राइट. सो दीज ट्रीज आर मोस्टली यूज्ड इन हार्ड डिस्क. एंड टू बी स्पेसिफिक, जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी इंडेक्स बनाता है तो इस तरह से वो ट्री जनरेट करेगा. एंड समटाइम्स आपको लगता है कि भाई 1 TB का हार्ड डिस्क लिया, लेकिन जैसे ही उसके अंदर पार्टीशंस बनाए मुझे पूरा 1 TB नहीं मिलता. पार्टीशन जैसे ही क्रिएट करते हो आपको फुल 1 TB यूज करने नहीं मिलता, कम हो जाता है. क्यों? बिकॉज सम ऑफ द स्पेस ऑफ योर हार्ड डिस्क विल बी ऑक्यूपाइड बाय दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल नीड दोज थिंग्स. हर एक ड्राइव के अंदर उसकी खुद की एक इंडेक्स बनेगी. वो इंडेक्स रखूंगा कहां पे मैं? कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए, राइट? सो दोज आर फ्यू रीजंस. नाउ let's come back to B tree. So what is B tree? Mostly it is used in disk spaces
इंडेक्स बनाने के लिए. इट इज अ सर्च ट्री, लेसर ऑन द लेफ्ट ग्रेटर ऑन द राइट तो है ही. जो एम वे सर्च ट्री था उसमें मिनिमम कंस्ट्रेंट भी ऐड कर दिया तब मुझे बी ट्री मिला. मैक्सिमम जो है एज इट इज, बट मिनिमम इज हाफ, आधा तो रहना चाहिए, तभी उसको मैं बी ट्री बोलूंगा. सो बी ट्री विल लुक समथिंग लाइक दिस वन. What we say, minimum and maximum constraints both must be followed here. दोनों फॉलो होने चाहिए. हाँ, रूट नोड जो है वो एक्सेप्शनल केस है. रूट नोड जो है वो एक्सेप्शनल केस है. वो मिनिमम कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करेगा. बाकी जितने भी नोड है सारे के सारे नोड मिनिमम कंस्ट्रेंट भी फॉलो करने चाहिए. अब रूट को एक्सेप्शन क्यों बोला? मान लो कि आप 5-वे बी ट्री बनाना चाहते हो. लेट्स गो फॉर 6-वे. लेट्स से यू वांट टू गो फॉर 6-वे बी ट्री. इफ यू वांट टू गो फॉर 6-वे तो 6 पॉइंटर मैक्सिमम, मिनिमम कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय 2, 3 पॉइंटर्स. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम 5 वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू. सो योर बी ट्री सेज देयर मस्ट बी मिनिमम 2 वैल्यूज इन एवरी नोड. लेकिन जब आप शुरुआत करते हो कोई नया ट्री बनाने की और सबसे पहली वैल्यू आप देते हो, यू क्रिएट योर फर्स्ट नोड एंड यू स्टोर द वैल्यू. क्या इसके पास 2 वैल्यू रहेगी? आपने सेकंड वैल्यू दी ही नहीं तो सेकंड वैल्यू वो निकालेगा कहां से? Now this is the first node and this is the root node. So we say root node is exceptional case for minimum constraint. हाँ, वो मैक्सिमम तो फॉलो करना चाहिए भाई. उसके अंदर मैक्सिमम 5 वैल्यू रह सकती है. 5 से ज्यादा हो गई तो उसको तोड़ना पड़ेगा. राइट? So here we say, okay, root node is exceptional case. Otherwise, every node need to maintain minimum and maximum constraint. Maximum m pointers, minimum half pointers, m by 2. So by looking at this tree, now tell me, is this search tree? पहले ये बताओ, क्या ये search tree है? यस? ओके. अगर सर्च ट्री है तो पहले ये देखोगे हर एक नोड में एक वैल्यू है या एक से ज्यादा? ज्यादा. सो इट मे गो फॉर एम वे. एक से ज्यादा वैल्यू है तो हम बाइनरी नहीं बोलेंगे, उसको एम वे बोलेंगे. नाउ इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम हियर? एम की वैल्यू क्या हो सकती है ऑन दिस ट्री? 4. Why 4? Why 4? Because we have maximum 4 pointers here. And what MWay says, it is not needed that you have exactly those pointers, but maximum m is the upper limit. तो maximum कितने possible दिख रहे हैं आपको? 4. So let us say this is 4-way search tree. This is 4-way search tree. Now I want to decide whether this is B tree or not. मिनिमम मैक्सिमम कंस्ट्रेंट देख लो. मैक्सिमम 4 पॉइंटर तो मिनिमम 2 पॉइंटर होने चाहिए हर एक जगह पे.
So 2, 3 or 4 pointers are allowed. And it is the case right now. मिनिमम 2 दिखेंगे, मैक्सिमम 4 दिखेंगे, कहीं ना कहीं 3 भी है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो 4-वे बी ट्री. अब बी ट्री का एक और कंस्ट्रेंट है, all the leaf nodes must be at the same level. अब जगह ना होने की वजह से मैंने उसको ऊपर नीचे ड्रॉ किया, बट इफ यू चेक द डेप्थ, तो हर एक लीफ नोड की डेप्थ इक्वल है, मतलब सारे के सारे लीफ नोड जो है वो एक लेवल में है. सो द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बी ट्री एवरी लीफ नोड मस्ट बी एट द सेम लेवल, तभी आप उसको बी ट्री बोल सकते हो. एंड दिस इज अ बी ट्री. ओके, सो नाउ टू मेंटेन maximum constraint, minimum constraint and leaf node at the same level, हमें क्या करना होगा? What we have to do to maintain these 3 constraints? जब भी हम बी ट्री बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा ये सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो करवाने के लिए? So let us see the insert operation now. How can we insert a value so that we maintain all those constraints? Let's try to understand. The first point, all the insertions must be done at leaf node, existing leaf node, याद रखो. So to insert a new element, सबसे पहले हमें तो वो leaf node ढूंढना पड़ेगा. भाई कौन सा नोड? मैं कोई भी एक वैल्यू देता हूं तो आप वो वैल्यू कहां पे इंसर्ट करोगे? आप पहले वो नोड सर्च करने जाओगे. सो यू आर गोइंग टू सर्च द ट्री टू फाइंड दैट लीफ नोड वेयर यू कैन इंसर्ट अ वैल्यू. आप पहले तो वो नोड ढूंढने जाओगे जहां पे आप अपना नया एलिमेंट ऐड कर सको. सो फाइंड अ लीफ नोड. Once you have a leaf node, what you do is you insert that new value into that leaf node that you found. But when you insert, you have to follow these steps. जब आप उस नोड के अंदर नई वैल्यू को डालते हो तो आप क्या चेक करोगे? Now if that node contains fewer than the maximum legal values, भाई मैक्सिमम 4 वैल्यू हो सकती है, लेकिन अभी उसके पास 4 से कम है. fewer than the maximum legal number of values. So अगर 4 से कम है उसके पास, then it has room, उसके पास जगह खाली है, it has room to accommodate a new value. So अगर उसके पास जगह खाली है, then we insert a new value simply and we are done. लेकिन जब भी आप नई वैल्यू डालते हो, then keeping the nodes element ordered. ऑर्डर क्यों? क्योंकि ये सर्च ट्री है. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना होगा हर एक नोड के अंदर, बिकॉज इट इज अ सर्च ट्री. सर्च ट्री है तो 8, 10, 12 ये फॉलो होना चाहिए. आई कैन नॉट डू 10, 8 एंड 12, क्योंकि अगर ऐसा किया तो लेसर और ग्रेटर वाला कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं होगा. राइट? So that's the reason when we insert a value in any node, we are going to maintain the order of those elements. That's it. So if your node already contains 8 and 12, where you have 3 null pointers because this is a leaf node, if you want to insert 10, अगर आपको 10 डालना है इसके अंदर, तो रिजल्ट क्या होगा आपका? You are going to insert that new value in the same node, but you will maintain the order. तो 8 और 12 के बीच में 10 चला जाएगा और अब आपके पास 4 पॉइंटर हो गए. ठीक है, चलेगा. 3 वैल्यू है, 4 पॉइंटर है. इफ मैक्सिमम कंस्ट्रेंट इज बीइंग फॉलोड, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो ऐसे ही.
So you search a leaf node, and if that leaf node has room, it has space, तो आप नई वैल्यू को आसानी से उसके अंदर डाल दोगे और काम खत्म, आगे कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम तब होगा जब वो नोड आपका ऑलरेडी फुल है। अगर वो नोड ऑलरेडी फुल है तो नई वैल्यू तो आप डाल नहीं पाओगे अंदर। इट इज ऑलरेडी फुल, उसके अंदर जगह है ही नहीं, तो नई वैल्यू डालेंगे कैसे? आप बलून फुला रहे हो, हवा भर रहे हो अंदर, जब तक उसके अंदर जगह है हवा भर सकते हो। बाद में क्या होता है? ब्लास्ट। ठीक है, बलून फूट जाएगा, टूट जाएगा। यहां पे भी वही होगा। मैक्सिमम वैल्यू जितनी रह सकती है उतनी रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू जब आप उसके अंदर डालोगे तो वो नोड टूट जाएगा। सो अदरवाइज if your node is full, then we split that node into two parts. आप उस नोड को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, वो टूटेगा वहां से। ठीक है, अब दो पार्ट में डिवाइड करना है तो तोड़ेंगे कहां से? आगे से, पीछे से, बीच से, कहां से? सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज, आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू वैल्यू, यू आर गोइंग टू फाइंड अ सिंगल मीडियन वैल्यू आप ढूंढोगे उस नोड में से, एंड देन you are going to, so first find the median value from that leaf node, and then once you have the median value, आपके पास दो पार्ट रहेंगे, लेफ्ट पार्ट, okay, and right part. So all the lesser values will be in the left node and all the greater values will be in the right node, because you already insert your value in the order. जब आप मीडियन वैल्यू को पकड़ते हो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड सारी छोटी वैल्यू होगी और राइट साइड जितनी भी है वो बड़ी वैल्यू रहेगी। सो यू आर गोइंग टू स्प्लिट दिस नोड, लेफ्ट पार्ट बनाओ जहां पे छोटी वैल्यू है और राइट पार्ट बनाओ जहां पे बड़ी वैल्यू है। दो पार्ट में डिवाइड किया। नाउ अलोंग विद दैट, मीडियन वैल्यू एक्टिंग एज अ सेपरेशन वैल्यू, जो भी मीडियन वैल्यू आपने सिलेक्ट की है वो इसके लिए सेपरेशन वैल्यू बनेगी। सो वो मिडिल वैल्यू, मीडियन वैल्यू जो है, आप उसको धक्का मारोगे ऊपर। मीडियन वैल्यू को आप ऊपर फॉरवर्ड करो, वो जाएगी पेरेंट के पास। अगर ऊपर कोई पेरेंट है तो उसके साथ जाके बैठ जाएगी। अगर ऊपर कोई पेरेंट नहीं है तो नया रूट बनेगा। सो मिडिल वैल्यू विल बी प्रोपोगेटेड अपवर्ड, ऊपर भेजो। ऊपर कोई है तो उसके साथ बिठा दो, ऊपर कोई नहीं है तो नया नोड बना लो, नया रूट जनरेट होगा। हाँ, ऊपर कोई है तो उसके साथ बिठाएंगे, लेकिन उसके पास भी जगह तो होनी चाहिए। जगह है तो बैठ गया, नहीं है तो तोड़ो, उसको भी तोड़ो। विद द सेम प्रोसेस, इफ दैट पेरेंट हैज अ रूम, इफ दैट पेरेंट हैज अ स्पेस, तो ये मिडिल वैल्यू पेरेंट में जाके बैठ जाएगी। But if that parent does not have a space, then the parent node will split with the same process. Parent node का median देखो, लेफ्ट और राइट दो पार्टीशन बनाओ, और पेरेंट का जो भी मीडियन है वो उसके पेरेंट में जाएगा। सो द चेन विल अकर। ठीक है, दैट्स द इंसर्ट प्रोसेस।
Let us see the example. तो ये सारा प्रोसेस ज्यादा समझ में आएगा आपको. Yeah, so it says you create a B tree with order 5. मतलब always keep this table side by. तो हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वी से वी आर गोइंग टू हैव पॉइंटर्स, मैक्सिमम पॉइंटर्स 5. तो मिनिमम पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे? 5/2, 2.5. आधा पॉइंटर रख नहीं सकता हूं, तो 2 पॉइंटर्स. वेल इन दैट केस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 and 1. So this is the minimum and maximum constraint and we need to follow this. रूट नोड एक्सेप्शनल केस है, उसमें ये मिनिमम वाला कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस गो एंड इंसर्ट वैल्यूज वन बाय वन. स्टेप 1, इंसर्ट 10. अब ये सीक्वेंस जो है वो जब भी आप क्रिएट करने जाते हो तो आपको ऑलरेडी दिया होगा. एग्जाम की बात कर लो तो क्वेश्चन में ये सीक्वेंस आपको ऑलरेडी दिया होगा. भाई create B tree with order 5 with given sequence. You know how to create binary search tree? वहां पे भी sequence दिया था. Similarly here you will have that sequence and you need to create this tree. ठीक है. अगर 10 insert करना है, ऑलरेडी ट्री के अंदर कुछ है ही नहीं, so the new node will be created and we are going to insert 10 there and this becomes the root node. This is my root node, the first node, root node. Then step number 2, insert 20. Have a look at the process. सबसे पहले आपको क्या करना है? Search a leaf node where you can insert a new value. अपने ट्री के अंदर सबसे पहले तो लीफ नोड देखो, ढूंढो जहां पे आप नई वैल्यू को डाल सकते हो. देन यू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू और उसके बाद देखेंगे भाई मैक्सिमम कंस्ट्रेंट फॉलो हुआ कि नहीं. तो एट द टाइम ऑफ इंसर्ट यू जस्ट नीड टू चेक मैक्सिमम पार्ट. अगर कुछ डाल रहे हो अंदर तो मैक्सिमम ही देखना होगा ना, मिनिमम को क्या देखने की जरूरत है? नहीं है. जब डिलीट करेंगे तो मिनिमम चेक करेंगे. सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी नीड टू फाइंड लीफ नोड. पहले तो लीफ नोड ढूंढो जहां पे आप 20 को इंसर्ट कर पाओ. एंड दिस इज अ सर्च ट्री. तो रूट नोड से चालू करेंगे और देखेंगे भाई 10 और 20 इज ग्रेटर, तो राइट साइड जाएंगे. मैं राइट चाइल्ड नहीं बोल रहा हूं, because this node can have multiple values. हम पहले राइट साइड देखेंगे, राइट चाइल्ड नहीं. एंड वी फाउंड दिस नोड, क्योंकि ये ही लीफ नोड है जो एक ही नोड है. द रूट नोड, लीफ नोड इज द ओनली नोड. सो हमें लीफ नोड मिल गया जो रूट नोड है. उसके अंदर 20 इंसर्ट करना है. वी इंसर्ट अ वैल्यू बाय मेंटेनिंग ऑर्डर. तो 20 को 10 के राइट साइड डाल दिया एंड दीज आर द 3 पॉइंटर्स, नल पॉइंटर्स एज ऑफ नाउ. चेक द मैक्सिमम कंस्ट्रेंट. इज देयर अ प्रॉब्लम? नो. सो फाइन, वी आर डन. स्टेप नंबर 3, find a leaf node, insert that value, and then have a look at maximum constraints. Still no problem? ठीक है, चलेगा. Find a leaf node, insert value in ordered way. Remember? So you have finally this node.
and check maximum constraint. Still there is no problem. तो अपनी हाइट जो है ट्री की मिनिमम रहती है जब तक हो पाए. Still we have only zero level 0 in our tree. ठीक है, we go for further insert operation. We go for further insert operation. Find a leaf node. मिल गया जो पहला ही नोड है. Insert your given value in order. Insert हो गया. And then check for the maximum constraint. प्रॉब्लम है. We have a problem. क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो नोड के पास इनफ स्पेस था ही नहीं, तो एक्स्ट्रा वैल्यू डालेंगे कैसे? ठीक है, मतलब यहां पे मैं एक्स्ट्रा वैल्यू तो नहीं डाल सकता. देन फाइंड द मीडियन वैल्यू. Find the median value and split your node, making your median value as a separation value. So left side 3 and 10, right side 27 and 35, median value 20 acting as a separation value, so it has been propagated or forwarded to the upper level. ऊपर जाने दो, ऊपर कोई था ही नहीं तो वो नया रूट बन जाएगा. When your node splits, you are going to propagate your median value to upward direction. When your root node splits, ट्री की हाइट 1 से इंक्रीज होगी. Remember, height of B tree will only increase when root gets split. तब तक नहीं. अंदर कोई भी नोड स्प्लिट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट बढ़ेगी नहीं. हाइट तभी बढ़ेगी जब आपका रूट नोड स्प्लिट होगा. And that's the very rare case because we have maximum 4 values in a node depending on the value of m. तो जब तक हर एक नोड के अंदर चार वैल्यू नहीं आ जाती, रूट तक तो पहुंचेगी नहीं. एट लास्ट जब तक रूट फुल हो जाएगा तभी स्प्लिट होके हाइट बढ़ेगी, तब तक नहीं. एंड वन मोर थिंग, एवरी लीफ नोड्स आर एट अ सेम लेवल. तो लेफ्ट राइट की तो कोई बात ही नहीं है. दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड. बैलेंस तो परफेक्ट हो ही रहा है, साथ में हम ट्री की हाइट भी कम रख रहे हैं, जितना हो सके कम रख रहे. सो दैट इज योर बी ट्री. अब आप बोलोगे सर 5 वैल्यू में से मीडियन, ठीक है, बीच का वैल्यू हो जाता है मीडियन. व्हाट इफ यू हैव 4 मींस 5 वे की जगह अगर 4 वे बी ट्री की बात करते हैं, तो अगर 4 वे बी ट्री की आप बात करते हो, सो मैक्सिमम 4 पॉइंटर्स और मैक्सिमम 3 वैल्यू. जब चौथी वैल्यू उसके अंदर डालोगे तो प्रॉब्लम करेगा. अब 4 में से मीडियन कैसे ढूंढेंगे? 4 में से बीच का कौन? सो यू कैन डिसाइड, ईदर यू टेक सेकंड और यू टेक थर्ड वन. अगर 4 वैल्यू है आपके पास, देन यू कैन डिसाइड, ईदर यू कैन टेक बी और यू कैन टेक सी. बट व्हेन यू आर एज अ डेवलपर, व्हेन यू आर डेवलपिंग योर प्रोग्राम, अगर आपने प्रोग्राम के अंदर ही लिख दिया कि सेकंड नोड को मीडियन गिनूंगा मैं, देन इट इज फिक्स्ड. आपका पूरा सॉफ्टवेयर इसी पे काम करेगा. सो बी विल बिकम अ सेपरेशन वैल्यू. ऑन द लेफ्ट इट विल हैव ए, ऑन द राइट इट विल हैव सी एंड डी.
मिनिमम कंस्ट्रेंट फॉलो हो ही जाएगा। मिनिमम क्या है, हाफ होना चाहिए। और आप जब डिवाइड करते हो तो क्या करते हो, मीडियन बीच से ही डिवाइड करते हो, तो हाफ ऑन द लेफ्ट हाफ ऑन द राइट, तो हाफ तो ऑलरेडी फॉलो हो ही रहा है। सो व्हेन यू स्प्लिट योर नोड, आपको मिनिमम चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी हाफ। सो is this process clear? How do we insert a value? So next thing, let us have a look at few more insert operations on B tree. Now I'll not go step by step, एक साथ एक से ज़्यादा स्टेप दिखाता हूँ. So okay, we'll have root 20. On the left we have 3 and 10. On the right we have 27 and 35. But let's say I insert 22, 30 and 35 is already there. So दो वैल्यू इंसर्ट की मैंने, 22 and 30, and your final tree will be something like this. We don't have any problem yet. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 वैल्यू है मैक्सिमम, फाइन. What if I want to insert 42 here? जनरली आप 42 इंसर्ट कैसे करोगे? You always start with the root node. अब एक्चुअल इंसर्ट प्रोसेस देखते हैं. पहले तो लीफ नोड को सर्च करना है. 42 को इंसर्ट करने के लिए वी नीड टू फाइंड द लीफ नोड. ओके, विल स्टार्ट विद रूट 20 के साथ 42 को कंपेयर करो. ग्रेटर, आप राइट साइड जाओगे, यू विल गो टू राइट साइड. हाँ, लेकिन राइट साइड कुछ है ही नहीं, तो फिर मुझे चिल्ड्रन देखने पड़ेंगे, चाइल्ड देखना पड़ेगा. अगर चाइल्ड पॉइंटर है तो ये लीफ तो नहीं, पक्का हो गया. सो वी गो टू द चाइल्ड नोड. वी गो टू द चाइल्ड नोड. चाइल्ड नोड में जाके भी यू कंपेयर 42 विथ 22. 42 बड़ा है तो राइट जाएंगे, राइट साइड जाएंगे. 42 को 27 के साथ कंपेयर करो, ग्रेटर, राइट साइड जाओ. 42 को 30 के साथ कंपेयर करो, ग्रेटर, राइट साइड जाएंगे. 42 को 35 के साथ कंपेयर करो, राइट साइड जाएंगे. अब राइट साइड कुछ है ही नहीं, तो मैं चाइल्ड देखूंगा. सो आई एम गोइंग टू सी दिस चाइल्ड, बट दैट चाइल्ड पॉइंटर इज नल. नल कब होता है? व्हेन इट इज अ लीफ नोड. तो मुझे ये लीफ नोड मिल गया. व्हेन चाइल्ड पॉइंटर इज नल, मुझे लीफ नोड मिल गया जहां पे मैं 42 को इंसर्ट कर सकता हूं. So now what we do is we insert 42 here. We insert 42 here. But when we insert 42, we have to check maximum constraint. Problem है? Yes, we have a problem. अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना है? मीडियन से स्प्लिट करो और उसको ऊपर जाने दो. तो रिजल्ट क्या होगा? योर लीफ नोड विल रिमेन एट द सेम लेवल. 310 जहां पे था वहीं पे 22 एंड 27 वाला लेफ्ट चाइल्ड और 35 एंड 42 वाला राइट चाइल्ड. अब ऊपर 20 तो ऑलरेडी बैठा था, 30 यहां पे आएगा. बीच में से जो भी मीडियन वैल्यू है जिससे आप डिवाइड करते हो नोड, स्प्लिट करते हो, दैट वैल्यू विल बी प्रोपोगेटेड टू द रूट. सो 30 ऊपर आएगा, which will act as a separation value. And lesser on the left, greater on the right भी मेंटेन हो गया. लीफ नोड सेम लेवल पे है और 30 को ऊपर भेज दिया. Now when 30 goes to the root node, upper node, parent node,
तो 30 को वहां पे डालने के बाद चेक करो वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये दोनों तो स्प्लिट हो गए, बट व्हेन वी प्रोपोगेट अ वैल्यू टू पेरेंट, पेरेंट में चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन योर वर्क इज डन। अगर वहां पे प्रॉब्लम होता तो उसको स्प्लिट करते, नहीं है तो छोड़ दो, काम खत्म। So that is the insert operation on B tree. I hope this process is much similar compared to AVL. ये आसान लगेगा आपको। देखना क्या है, नई वैल्यू हर बार लीफ में जानी चाहिए। मेक श्योर दैट यू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू एट लीफ नोड ऑलवेज। इंसर्ट करने के बाद मैक्सिमम कंस्ट्रेंट चेक कर लो, और अगर प्रॉब्लम है तो नोड स्प्लिट कर लो, मिडिल वैल्यू को ऊपर जाने दो। सो और भी वैल्यूज इंसर्ट होती जाएगी लीफ नोड में। लीफ नोड जब स्प्लिट होगा तो एक एक वैल्यू, सॉरी, सो लीफ नोड जब स्प्लिट होगा तो एक एक वैल्यू रूट के पास आएगी, करेक्ट। और जब रूट नोड स्प्लिट होगा तो हाइट एक से इंक्रीज होगी। फाइन, so we'll stop here for today. That's the insert operation on B tree. We started with M-way search tree and then we moved to B tree. B tree में leaf node same level पे, minimum constraint half, maximum constraint M, ये होना चाहिए तो B tree है। We see how we can insert a value in a B tree so that we follow all these constraints. We stop here for today, and in the next lecture we are going to see the delete operation on B tree. That's all for today. Thank you everyone. See you in the next lecture.